ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਡਾਟਾ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੇਬਲ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਸਮ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਟ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਓਵਰ ਦਾ ਗਿਵਨ ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਈਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1998 to 88। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਬੋਨਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਿਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ PPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ। ਫਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪਰ ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਈਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਈਅਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈਡ ਟੂ ਪੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰ ਦਈਦਾ ਅਤੇ ਅਪੋਨ ਕੀ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, 1 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ, 23.4 ਪਲੱਸ 32.5 ਪਲੱਸ 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4 अपॉन की नंबर ऑफ टर्म्स अपने को 5 है। ठीक है, इन्हों की एडिशन करके अपने को आ जाएगा 183.3 अपॉन 5। इनू डिवाइड करोगे तो 36.66 जो अपने को एवरेज आएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, ये सी आप जो पूरा सॉल्व किया कि आप इन्हों का सम किया है, अपॉन 5 किया। जे तुसी शॉर्ट मैथड ना करना चाहते हो, उहदे विच की है कि सिर्फ कैलकुलेशन का शॉर्ट आप इहदे कर सकते हैं, होर इहदे कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, शॉर्ट की है कि तुसी आपां जिवें ऐड करते हैं, ये अपने को 23 है, 32 है, 41 है, 36 है, आ 49 है। जिहड़ा अबव जिवें 49 है, 9 जिहड़ा 5 तो अबव है। ठीक है, 6 भी 5 तो अबव है, 1 जिहड़ा 5 तो छोटा। जे 5 तो छोटा तो इनू आपां 40 मान के चलांगे, इनू आपां 40 मान के चलांगे क्योंकि ये 6 है। ठीक है, 36 तो नैक्सट वाला की आएगा 40। ये अपने को की आ जाएगा 50। इस ढंग नाल जिहड़ा आपां इन्हां दा प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं। बट वो भी तां आपां कर सकते हैं जे अपने को जिहड़ियां ऑप्शन है उन्हां च बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिवें 32 है, 33 है, 34, 36 है। इन्हां च आपां नूं 1 का डिफरेंस शो हुंदा है। बट कई बारी जिहड़ा अपना डिफरेंस है बहुत घट हुंदा है, जिवें पॉइंट तो बाद का डिफरेंस हुंदा, उहदे विच आपां नूं सारा सॉल्व करके ही आंसर आएगा। ठीक है, उहदे विच आपां डायरैक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इहदे च आपां की कर सकते हैं 20 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 50। ठीक है, 90 तो इत्थे अपने को कितना हो गया 30 20 तो अपने को टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये अपने को हो जाएगा 180.5 करोगे तो 36 पॉइंट कुछ तुहाडा जिहड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नैक्सट है द टोटल अमाउंट ऑफ बॉन्स पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली वट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जी टोटल अमाउंट है बॉन्स की वो की है अप्रॉक्सीमेटली वो किन्ने परसेंट है जी टोटल अमाउंट है सैलरी की। ठीक है, बॉन्ड्स का जिन्ना भी अपने को अमाउंट है उन्होंने आप फाइंड करना है कि वो किन्ने परसेंट बनती है सैलरी की। इट मीनस हुण आपां नूं सैलरी का टोटल भी करना पएगा तो अमाउंट का भी। सैलरी अपने को ये वाली है। ठीक है, तो अमाउंट जो अपने को है अमाउंट अपने को बॉन्स का पूछा ना, तो बॉन्स अपने को ये वाला। ठीक है, इन्हां सारियां दी एडिशन करनी पैगी। सारियां दी एडिशन करोगे, इन्हां सारियां नूं ऐड करोगे तो अपने को की आएगा 17। इनू सारे नूं ऐड करोगे तो 17 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप फाइंड करनी है इत्थे अपने को की है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज की होंगी है जिंदी परसेंटेज फाइंड करनी ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई की कर दीदा 100। तो इनू कैंसल करोगे की आ जाएगी 1%। ठीक है, इतने 0 आ जाएगा 70 100 तो इतने अपने को क्या आ जाएगी 1%। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगी। नैक्सट है
टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दिस आइटम्स इज 1998 वाज अप्रोक्सीमेटली वट परसेंटेज। इत्थे भी आपां परसेंटेज फाइंड करनी है। ईयर अपने कोल 1998 दिता, तो वट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 2002, ठीक है। जिन्ना टोटल एक्सपेंडिचर 1998 विच हुंदा वो किन्ने परसेंट है जिन्ना 2002 च हुंदा है। इट मीनस आपां 2002 का भी टोटल करना तो 1998 का भी, ठीक है। इस सारिया टर्म्स का जिन्ना भी एक्सपेंडिचर है इन्हों ऐड कर दो तो अपने कोल की आएगा 495.4। इन्हां दी एडिशन करोगे तो 71.36। फिर आप फाइंड करनी है परसेंटेज। परसेंटेज लई की है जी परसेंटेज फाइंड करनी है उन्होंने ऊपर ले लोगे तो नीचे टोटल आ जाएगा, मल्टीप्लाई की कर दोगे 100, ठीक है। तो अपने कोल की आ जाएगा 69.45। तो जो अपने कोल सी ऑप्शन है वो अपने कोल राइट हो जाएगी। 69 पॉइंट आता ना तो अपने को राइट हो जाएगी। फोर्थ सम है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दिस आइटम ड्यूरिंग द ईयर 2000। टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है कंपनी का 2000 ये सिंपल ही है कि जो 2000 वाला ईयर है उनका जिन्ना भी एक्सपेंडिचर आप ऐड कर देंगे 324 प्लस 101 प्लस इन्होंने सारिया की एडिशन कर दोगे तो अपने को की आएगा इन्हें टोटल करने ते ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा 544.44 लाख। नैक्सट है देखो उसी अपने को सिंपल टेबल ये जो सैकेंड वाला है ये अपने को रेशो दी हुई है टेबल च परसेंटेज दी है। ये देखो तुम की कर सकते अपने को दी है परसेंटेज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन दी है, ठीक है। परसेंटेज दिता है। नैक्सट अपने को जो है मेल फीमेल, ठीक है, इन्हों की रेशो दी है बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेल पॉपुलेशन आप फाइंड करनी है, अबव पॉवर्टी लाइन फाइंड करनी है, स्टेट आर की फाइंड करनी है। वो उन्होंने क्या 1.9 है तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर की आप फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला आप आर नूं देखांगे, आर अपने को ये टर्म है, ठीक है। ये मेल अपन दिते हुए हैं यानी कि मेल की रेशो कितनी है 2, जी 2 रेशो है 1.9 के इक्वल दी है। आप पहला टोटल वेख लाँगे 3 + 2 कितना हो गया 5, तो टोटल कितना आ जाएगा 1.9 तो अपॉन किया 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। नैक्सट आप देखो उन्होंने क्या 24% बिलो पॉवर्टी लाइन दी है ना, आप अबव पॉवर्टी लाइन की गल करते हैं, ठीक है। तो आप टोटल जो होंगे वो 100% होंगे तो 100% जो 24 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 76% जो है वो आ जाएगा अबव पॉवर्टी लाइन। इट मीनस ये टोटल है ना तो 76% जो अपन दिता है 1.9 अपॉन 2 × 5 के इक्वल दिता है। आप फाइंड करना है टोटल मतलब 100%, तो 100% की आ जाएगा 1.9 अपॉन 2 × 5 आ 76 डिवाइड हो जाएगा एंड जो 100 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इनू कैंसल करने ते तुहाडे कोल जो टोटल बनेगा वो अपने कोल आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन थे राइट कर लो 6.25 क्लीयर है। तो अपने कोल की बन जाएगा 6.25। इन तुसी सॉल्व कर लेना 1.9 अपॉन 2 × 5 अपॉन 76 × 100, ठीक है। ये चीज़ ध्यान नोट करनी है आपू जी है एक साइड से रेशो दी है जब 2 की रेशो उन्होंने कहना मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन कितना है 1.9 तो अबव पॉवर्टी लाइन च मेल की रेशो 2 सी ना 2 = 1.9 दे लै ली। फिर टोटल 3 + 2 5 आप फाइंड कर लिया। टोटल जे आप परसेंटेज देखिए तो टोटल 76% है तो 76% इनके इक्वल आ गया। जो आप 100% फाइंड करना है तो 76 उधर डिवाइड होकर 100 का मल्टीप्लाई हो जाना तो तुहाडे कोल 6.25 इनका राइट आंसर आ जाएगा। सैकेंड सम है वट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल अबव द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट एस। आप एस फाइंड करनी है, फीमेल फाइंड करनी है अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इट इज़ नाउन दैट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एस इज़ 7 मिलियन। उन्हें कहा कि जी पॉपुलेशन स्टेट एस की वो की है 7 मिलियन है, ठीक है। मतलब टोटल पॉपुलेशन दी हुई है आपको 100% किंदे इक्वल दिता है 100% इक्वल दिता है 7 दे, ठीक है। आप फाइंड की करना देखो जे आप एस डी देखिए तो एस डी किन्ने परसेंट दी है बिलो पॉवर्टी लाइन दी है 19%। इन्हें मतलब अबव पॉवर्टी लाइन की आऊगी 100 - 19 तो इज़ इक्वल टू 81% अबव पॉवर्टी लाइन आ जाऊगी। तो आप फीमेल की फाइंड करनी है। देखो पहला आप अबव पॉवर्टी लाइन टोटल पॉपुलेशन फाइंड कर लेंगे 81 आप फाइंड कर लेंगे 7/100 मल्टीप्लाई किया गया 81, ठीक है। नैक्सट देखो अपने को जी रेशो है अबव पॉवर्टी लाइन वो दी है 4:3 जिन्हें फीमेल की है 3 टोटल कितना है 7 है।
ये किन्ने दा है जिन्ना अपने कोल टोटल है, ठीक है। टोटल अपने कोल की है 7/100 मल्टीप्लाई 81। 100 का 100 कैंसल हो जाएगा, और सॉरी 7 कैंसल हो जाएगा, तो अपने कोल की आएगा, इन्हू मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने कोल की आएगा 243/100। तो डिवाइड करोगे 2.43, जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा। नैक्सट थर्ड है, वट विल बी द मेल पॉपूलेशन अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन आप मेल वेखने हैं, स्टेट पी वेखनी है, द फीमेल पॉपूलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट पी की दिती है 2.1। देखो एक तो अपन फीमेल दी हैं, सैकेंडली अपन की दी हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो स्टेट पी आप देखनी है, जे आप स्टेट पी देखिए तो पी अपने को वाली स्टेट है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन च वेखिए तो अपने को जी फीमेल है वो की है 6 है, ठीक है। तो 6 किंदे इक्वल दिता है, उन्होंने कहा ना कि बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट 2.1 दिता है, ठीक है। तो अपने को 6 किंदे इक्वल आ गया 2.1 दे, जो फीमेल अपने को 2.1 दी हैं। आप पहला टोटल देख लाँगे, ठीक है। टोटल 6 + 5 तो अपने को 11 आ जाएगा, तो 2.1 6 नीचे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा 11, ठीक है। नैक्सट जे आप इतों वेखिए तो इतने बिलो पॉवर्टी लाइन दिता 35% दिता, इट मीन जो 35% है इनके इक्वल है। आप की फाइंड करना है मेल पॉपूलेशन अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो मेल किन्ने आउणगे वेखो, अपने को जड़ियाँ फीमेल है इतने अपने को क्या अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, भी नोट करना है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन 35 है, तो अबव पॉवर्टी लाइन कितना हो जाएगा 100 - 35, तो इज इक्वल टू 65। आप 65% फाइंड करना है, ये अपने को कितना दिता 35% दिता, ठीक है। तो 35% किन्ने इक्वल दिता अपने को 2.1/6 मल्टीप्लाई 11 दे, आप फाइंड करना है 65%, तो वो किन्ने इक्वल आ जाएगा 2.1/6 मल्टीप्लाई 11/35, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड 65 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नैक्सट उन्होंने अपन क्या है कि अपन जर्नल फाइंड कर लिए क्या है ना, ठीक है। तो ये की है परसेंटेज में हटाने लिए, तो परसेंटेज आ जाएगा ना 65% आ जाऊगा, तो इनका परसेंटेज आ जाऊगा, बट आप 100% लिए आप इनकी परसेंटेज हटाने लिए 100 नाल डिवाइड कर देंगे। तो जो आप इनू मल्टीप्लाई करेंगे 7 के टेबल से कैंसल कर दो 0.3 आ जाएगा, तो इतने क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो इतनू कैंसल करते अपने को आ जाएगा 330/100, ठीक है। तो अपने को जी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी, 3.3 जो मिलियन अपने को आंसर आ जाएगा। नैक्सट सम अपने को पाई चार्ट का, ठीक है। 2 सम आप टेबल ना किए हैं, नैक्सट आप 2 जो पाई चार्ट ना करेंगे। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज़ अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। पब्लिकेशन बुक देती हैं, प्रमोशन लिए कोस्ट 10% है, रॉयल्टी 15, प्रिंटिंग कोस्ट 20% है, ट्रांसपोजेशन अपने को 10% दी है। ये पाई चार्ट अपन दिते जा सकती है, एंगल च भी दिते जा सकती है। देखो ये जा तो अपने को परसेंटेज आऊगी, ठीक है, ਜਾਂ अपने को की आएगा डिग्री आऊगी, तो ਜਾਂ अपने को कोई वैल्यू दी हो सकती है पाई चार्ट, ठीक है। इस तरह इतने कोई वैल्यू दी जा सकती है 300 है या 200 है, ठीक है, 400 है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस तरह दिता होंगे 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है। इस तरह दिता होंगे। जे अपने को डिग्री है तो डिग्री टोटल जो है सर्कल च एंगल किन्ने का बनता है 360 का, ठीक है। जे अपने को परसेंटेज है तो टोटल बनेगा 100%, ठीक है। तो वैल्यू जिन्नी अपने को टोटल दी होएगी उन्नी बनेगी। ये चीज़ नोट करनी है 100% लिखना 360। जिवें हुण आपां नूं फाइंड करने लिए क्या है, जे परसेंटेज नूं आपां एंगल च कन्वर्ट करना है, जिवें हुण मान लो पेपर कोस्ट है 25% है, तो इनू आपां एंगल च कन्वर्ट करने लिए क्या है, ठीक है। तो आपां की करना है 25 अपॉन टोटल कितना है 100 मल्टीप्लाई आपां जिंदे च कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किंदे च करना है एंगल च, वो आपां मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपने को की आ जाएगा 90 डिग्री जोड़ा वो एंगल च कन्वर्ट हो जाएगा जोड़ा 25%। सेम इवें जे अपने को पहला एंगल च दिता आप परसेंटेज कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंगल मान लो अपने को 40 डिग्री दिता है, तो इनू आप परसेंटेज च कन्वर्ट करना, तो इनका टोटल कितना है 360 नीचे टोटल मल्टीप्लाई वो टर्म करनी जिंदे च आप कन्वर्ट करना है। जे आप परसेंटेज कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई की करांगे 100, ठीक है। तो इत्थे अपने को 11 पॉइंट कुछ जो परसेंटेज आ जाएगी। क्लीयर, ये चीज़ नोट रखनी है कि जिन्हों आप कन्वर्ट करना है उन्होंने आप इधर मल्टीप्लाई करना है, जो टोटल है उन्होंने नीचे डिवाइड करना। हुण फर्स्ट सम की है, इफ फॉर सर्टन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज़ टू पे 30,600 एज अ प्रिंटिंग कोस्ट। प्रिंटिंग कोस्ट जी है वो सर्टन क्वांटिटी के पब्लिशर ने पे की है, इन्नी दी है। दैन वट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू पेड फॉर दिस बुक्स। तो उन्हें क्या रॉयल्टी लिए कितना पे जो पे करेगा, ठीक है। तो पब्लिशर लिए किन्नी की है इन्नी है। जे आप परसेंटेज देखिए
प्रिंटिंग कोस्ट ठीक है, प्रिंटिंग लिए इन्नी दी है 20%। ठीक है, 20% जो अपने को है वो दिता होया है 30,600। आप फाइंड करना है, आप फाइंड करना रियलिटी। रियलिटी कितनी है 15%। इट मीनस आप फाइंड करना है 15%। तो की होएगा जिवें प्रीवियस च आपां कीता सी, आ 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जिहड़ा आप फाइंड करना वो नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 के टेबल ते कैंसल कर दो। ठीक है, तो जिहड़ा कैंसल होंदा उहनूं आपां कैंसल कर देंगे, बाकियां नूं आपां ऐड कर देंगे। जो राइट एंगल आ जाएगा वो अपने को सी आ जाएगा, अपने को इन्नी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन्हूं मल्टीप्लाई करन ते बाद 4 नाल डिवाइड करन ते। नैक्सट सम है वट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ सैक्टर कोरसपोंडिंग टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑन अ रियलिटी। एक्सपेंडिचर आप रियलिटी ते जिहड़ा उहदा सेंट्रल एंगल फाइंड करना। तुहानूं मैं हुणे दस्सिया सी जदों आपां परसेंटेज नूं एंगल च चेंज करना है, इत्थे 15% दिता ना, तो आपां की करांगे 15 अपॉन टोटल। टोटल कितना 100%। एंगल च कन्वर्ट करना है तो 360 नाल टोटल नाल मल्टीप्लाई कर देंगे इहदे नाल। ठीक है, तो आप कैंसल कर देंगे 5 के टेबल ते। ठीक है, तो अपने को कितना बन जाएगा 54। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगी, 54 डिग्री का जो है एंगल आ जाएगा। नैक्सट है थर्ड, द प्राइस ऑफ बुक्स इज़ मार्केट 20% अबव द कोस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस जोड़ा 20% अबव किया गया कोस्ट प्राइस तो। कोस्ट प्राइस आप मान लो 100 लई है। ठीक है, तो इफ मार्केट प्राइस ऑफ बुक्स इज़ 180, मार्केट प्राइस अपन दिता है। ठीक है, 180 इसका मतलब जो 120% है, जोड़ा अपने को वध लगाया 20% अबव लगाया ना कोस्ट प्राइस, तो वो 100 सी तो प्लस 20 120 कितना अपने को दिता 180 के इक्वल। ठीक है, वट इज़ द कोस्ट ऑफ पेपर। तो कोस्ट ऑफ पेपर जोड़ा है वो कितना अपने परसेंट है, पर कोस्ट कितनी है 25%। इट मीनस 120% अपने को दिता है 180 के। तो आप कितना फाइंड करना है, आप जी पेपर की कोस्ट है 25% इनका फाइंड करना है। तो 25% कितना आ जाएगा इक्वल टू 180 अपॉन क्या आ जाएगा 120, जो आप फाइंड करना वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई की कर देंगे 25, तो अपने को जो आंसर है वो आ जाएगा 37.50। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, इन्हों सॉल्व करना आप 0 ना 0 कैंसल कर दो जी। ठीक है, तो 6 के टेबल से कैंसल कर दो, इतने इनू मल्टीप्लाई कर लो 75/2 करोगे तो 37.50 जो अपने को राइट ऑप्शन आएगी सी। फोर्थ है इफ 5500 कपल्स आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट जी है दैम अमाउंट अपने को इन्नी दी है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कोस्ट इन्नी दी है, इतने अपने को कितनी है 10% है, इनका मतलब 10% इनके इक्वल है। वट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स टू पब्लिश अर्न एट प्रॉफिट 125%। तो सेलिंग प्राइस से जो प्रॉफिट अर्न करता 125% है, इनका मतलब टोटल कितना हो गया 125% की आप वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को 10% की वैल्यू दी है। ठीक है, 10% जो अपने को दिता है 82,500। ठीक है, आपा की फाइंड करना है 25% का प्रॉफिट है ना, तो आप फाइंड करना है 125%। तो वो आ जाएगा 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई की हो जाएगा 125। ठीक है, इन्हें कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर है वो अपने को आ जाएगा। नैक्सट है स्टडी द फॉलोइंग पाई डायग्राम। अपन पाई डायग्राम दी है, परसेंटेज कंपोजिशन दी है ह्यूमन बॉडी की, इतने बाय पार्ट्स दी है। ठीक है, पार्ट्स का भी टोटल करोगे तो 1 ही बनेगा। ठीक है, 1 पार्ट्स होंगे टोटल, तो ये अपने को 100% बनेगा। वाटर की है 70%, अदर ड्राई एलीमेंट्स 14% है, तो प्रोटीन 60% है। फर्स्ट क्वेश्चन की है वट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इक्वैलेंट टू द वेट ऑफ प्रोटीन इन स्किन इन ह्यूमन बॉडी। तो उन्होंने कहा किन्ने परसेंट जोड़ा वो इक्वल आता अपने को वेट ऑफ प्रोटीन इन स्किन इन ह्यूमन बॉडी। तो पहले आप ह्यूमन बॉडी जी है वेट ऑफ प्रोटीन फाइंड कर लेंगे। तो वेट ऑफ प्रोटीन की है 16%, तो कहता 16% अपने को स्किन का, स्किन कितनी अपने को 110, तो यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई 16% हटाओगे 100 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 0.016। उन्हें क्या परसेंटेज ऑफ टोटल वेट है, टोटल वेट अपने को की है 100%, तो 100 की वैल्यू की आ जाएगी, इनू 100 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1.6 जो अपने को आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगी। सेकंड सम है वट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी ऑफ परसन वेट 50 kg। तो उन्हें क्या है कि कितनी क्वांटिटी वाटर की होगी बॉडी जेकर वेट 50 है। ठीक है, तो वेट 50 का की है, वाटर कितना 70% दिता है, यानी कि 50 का आप फाइंड करना है 70%। तो 50 मल्टीप्लाई 70/100 कर देंगे, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन राइट आ जाएगी 35 kg। थर्ड सम है वट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन
प्रोटीन इन द मसल सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन द बोन्स। तो उन्होंने कहा कि किन्ने अपने को पूछा है कि रेशो फाइंड करनी है, आप फाइंड करनी है प्रोटीन इन द मसल दी ते प्रोटीन इन द बोन्स। ठीक है, तो पहला प्रोटीन इन द मसल फाइंड करांगे। प्रोटीन किन्नी है 60%, मसल किन्ने 1/3, तो 1/3 का आप की करांगे 16% है। किन्ने परसेंट उन्होंने आखना रेशो क्या है। ठीक है, रेशो मतलब अबव ये आ जाएगा, तो बिलो क्या आ जाएगा अपन क्या है प्रोटीन इन द बोन्स। तो प्रोटीन अपने को किन्नी 16%, बोन्स अपने को की है 1/6, तो इनका भी 16% हो गया। 100 मल्टीप्लाई बोन्स किन्नी अपने को 1/6, इनू कैंसल कर दोगे तो अपने को की आएगा 6/3, तो 2:1 जो अपने को राइट ऑप्शन आ जाएगा सी। क्लीयर है, इन्हें रेशो फाइंड करनी सी आप डायरेक्ट ही सॉल्व करके रेशो फाइंड कर ली। नैक्सट है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर ड्राई एलीमेंट इन ह्यूमन बॉडी द एरिक ऑफ द सर्कल शुड सबसटेन एट द सेंटर एंड एंगल। इन्हें आपको एंगल पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन क्या है एंड अदर ड्राई एलीमेंट का आप एंगल फाइंड करना है। तो आप प्रोटीन का भी टोटल कर लिए एंगल ना। तो अदर ड्राई एलीमेंट 14 है, तो प्रोटीन कितनी है 16 है। 14 + 16 कितना आ गया 30%। इनू आप एंगल च कन्वर्ट करना है, तो टोटल कितना होंदा है 100 नाल डिवाइड कर देंगे, तो एंगल च कन्वर्ट करना है 360 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 नाल 20 कैंसल हो जाएंगे, 36 नू 3 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने को 108 डिग्री जो है एंगल आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगी। नैक्सट अपने को है बार ग्राफ। बार ग्राफ एक गल याद रखनी है, कोई भी ग्राफ करते हैं तो जो भी पेज है वो आप प्लेन लैना, उहदे सारा जिवें फर्स्ट क्वेश्चन है उहदे वाला डाटा लिखना, सैकेंड वाला थर्ड वाला, क्योंकि कई बार थर्ड च जिहड़ा क्वेश्चन च डाटा यूज होंदा वो आप फर्स्ट का करना होंदा। ठीक है, तो जब फर्स्ट वाला जिवें आप सम सॉल्व कर लिया तो जो भी आप उहदे रफ वर्क किया उहदी आपां नूं थर्ड च जरूरत पै सकती है, इसलिए साफ पेज से आप फर्स्ट सैकेंड या थर्ड सीक्वेंस च सॉल्व करांगे। जिवें हुण इहदे च द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज, इहदे च आपां नूं एक बार ग्राफ दिता। ठीक है, एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का दिता ऑफ कंट्री मिलियंस दिता है। तो रेशो फाइंड करनी है, फर्स्ट अपने को सम है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर अबव द एवरेज रिजर्व। ठीक है, आप रेशो फाइंड करनी है, किंदी फाइंड करनी है कि जिन्हों की एक्सचेंज जी है वो की है द रेशो द नंबर अबव ए एवरेज रिजर्व तो। सैकेंड किंदे फाइंड करनी है टू दोज विच द रिजर्व आर बिलो द एवरेज रिजर्व, जिन्हों की बिलो है एवरेज रिजर्व। इसका मतलब आपको पहला एवरेज फाइंड करनी पैगी। ठीक है, तो आप पहला एवरेज फाइंड करांगे। देखो बार ग्राफ चो ना आप देख के भी दस सकते हैं, जिवें हुण अपने को इत्थे बार ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, जे आप इनक्रीजिंग ऑर्डर से सैट करिए तो फस्ट वाला ये आएगा 25 20 वाला, सैकेंड वाला ये आएगा। ठीक है, थर्ड वाला ये आएगा, तो फोर्थ जो अपने को ए वाला आएगा। दैन नैक्सट 6th 7th एंड 8th 1 2 3 4 5 6 7 है ना टोटल। जे अपने को 1 2 3 4 5 6 7 दिते है, तो अपने को एवरेज नंबर किहड़ा हुंदा जिहड़ा विचकारला आ जांदा, यानी कि फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला अपने को है। ठीक है, इट मीनस जो एवरेज है वो 3360 के नीयर होएगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलनी है कि अपने को 3360 के नीयर जी एवरेज है। जे तुसी एवरेज फाइंड करनी है तो तुसी डायरैक्ट भी इनका सम कर सकते हो, जिवें आप इन्हां दा सम कर दिए 260 40 प्लस 37 20 प्लस 25 20 सारिਆਂ ਦਾ एडिशन करके टोटल कर दिए। ठीक, 43 20 प्लस 5040। ठीक है, इन्हां दा एडिशन किवें कर सकते हो ईजी वे नाल। पहला आपां की करना है लास्ट वाले 2 डिजिट का सम कर लो, 40 प्लस 20 60 60 प्लस 20 अपने को 80 आ गया, 80 प्लस 60 140 आ गया, 140 प्लस 20 160 आ गया, 160 प्लस 20 अपने को की आ गया 160 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 प्लस जो 40 है वो अपने को क्या आ जाएगा 220। ठीक है, 220 आ गया अपने को, लास्ट अपने को 20 आ गया, आ जो 2 है रिमाइंडर है। ठीक है, 2 नूं फिर आप फस्ट वाले 2 डिजिट का सम कर लो, तो उहदे विच जिहड़ा 2 ऐड कर देना, तो आप इस ढंग नाल टोटल कर सकते हैं। हुण आप इन्हां दा टोटल करांगे, अपॉन की है टोटल लावांगे। टोटल किन्ने अपने को दित्ते आ, ठीक है 8 है, तो इन्हां नूं डिवाइड कर लो, टोटल करोगे तो अपने को जो सम आएगा उन्होंने डिवाइड करते जो करैक्ट एवरेज बनेगी वो 3480 बनेगी। ठीक है, नीयर इहदे बन गई ना, तो आप इनू भी लैके चल सकते हैं। इहदे च अप्रोक्सीमेट हुंदा आपां बार ग्राफ करना। फिर उन्होंने कहा है कि रेशो ऑफ द नंबर जिंदी इहदे तो घट है तो जिंदी इहदे तो ज़्यादा उनकी आपां रेशो फाइंड करनी है। तो इहदे तो अबव किन्ने है 3480 तो अबव, ए वाला भी अबव है। ठीक है, ए वाला भी अबव है, तो अपने को की आ गया
टोटल ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਬਵ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 3 ਕੰਟਰੀ ਅਬਵ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 3:5। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉरेन कंट्री एक्सचेंज रिजर्व इन 1997-98 वाज हाउ मैनी टाइम्स दिस वन। 1994 ਤੇ 95 ਦਾ किन्ना उन्होंने क्या किन्ने टाइम है उनके तो 1997 अपने को आ है, तो सैकेंड अपन दिता है 1994। ठीक है, आप देखना है भी आए तो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो आप की करेंगे इन्हों डिवाइड कर देंगे किन्ने गुना क्या ना उन्होंने अपने तो। ठीक है, तो इन्हों डिवाइड करोगे 1.5 आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगी। थर्ड सम है फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इज़ द हाईएस्ट। किहड़े ईयर च परसेंटेज इंक्रीज जिहड़ी हुंदी है वो अपने कोल प्रीवियस ईयर दे जाए ज़्यादा है। ठीक है, तो अपने कोल जिहड़े ईयर दिते हैं आप उन्होंने ही फाइंड कर लेंगे क्योंकि अपन सारिਆਂ की जरूरत नहीं है। पहला अपन दिता है 1992 to 93, तो आप इन्होंने दोनों को वेखते हैं। ठीक है, इन्हों का जो परसेंटेज आप कढ़नी है तो दोनों का डिफरेंस 720 माइनस 26/40 अपॉन प्रीवियस ईयर जो कि फाइंड करनी है आप परसेंटेज। ठीक है, इनक्रीज फाइंड करना ना परसेंटेज जिन्ना इनक्रीज होया फाइंड करने लिए आप जो फस्ट है वो प्रीवियस माइनस कर देना अपॉन प्रीवियस कर देना। ठीक है, तो अपने को जो आंसर आ जाएगा इन्हों ये माइनस करोगे तो 40.9 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट। ठीक है, ये अपने को की आ गई फस्ट वाले दी जो एवरेज आई है इंक्रीमेंट आया। ठीक है, इन्ने का इंक्रीमेंट है। फिर 1993 to 94, तो 93 अपने को आया 94 ये वाला। ठीक है, तो इहदे विच भी आप माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। ये तो पहला ही नैगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इहदा मतलब ये लैस ही आएगा। फिर नैक्सट अपने को 94 एंड 95। 94 अपने को की है ए वाली है, 95 अपने को ए वाली है। इहदे चों इनू माइनस करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो तुसीं जो भी डाटा सारे सॉल्व करोगे तो तुहानूं पता लगेगा कि जिहड़ा किहड़े ईयर्स हाईएस्ट है तो वो ए ऑप्शन ही राइट आएगा। ठीक है, इस तो इलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो आप डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इहदे च डिफरेंस वेखो इहदे डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा नीचे वाला ईयर है उहदे च वो घट है अपने कोल, तो इहदा मतलब इहदा जिहड़ा इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा आएगा। उस तो बाद इहदे च तां की है डिक्रीज़ हुंदी है, इंक्रीज़ तो हुंदी नहीं, अपने को पता है नैगेटिव आंसर आउंदा पिया। ठीक है, तो आप इसों डायरैक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो बाय प्रैक्टिस आ सकता। इवें आपां नूं इत्थे सम सॉल्व करने पैणगे जे अपनी प्रैक्टिस नहीं होएगी। तो फोर्थ है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1996-97 अप्रोक्सीमेट इन्ना ईयर दी अप्रोक्सीमेट वट परसेंट ऑफ द एवरेज एक्सचेंज रिजर्व ओवर द पीरियड ऑफ अंडर रिव्यू। अंडर रिव्यू मतलब जिहड़ा अपने कोल आपां फाइंड कीती ना एवरेज। ठीक है, तो उनका अपने कोल जिहड़ा दिता है उनके आपां रिव्यू च वेखना है। रिव्यू ये रो होएगा जिहड़ा एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज अपने को फाइंड कीती सी की आ गई सी 3480 दी। तो 96 एंड 97 च आपां नूं क्या तो 96 एंड 97 च अपने को वैल्यू दी है 4320। ठीक है, तो इनका कितना परसेंट है एवरेज का मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इन्हू सॉल्व कर लोगे तो अपने को आएगा 125%। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगी। सैकेंड अपने को 2 बार ग्राफ आ जाते हैं, तो इहदे विच किवें सॉल्व करना है। परसेंटेज शो करनी है 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स दित्तियां होईयां। ये अपने को की है फस्ट वाली पी है, ये अपने को क्यू है, आर एस टी एंड यू। ठीक है, इवें इत्थे आ पी है, क्यू है, आर एस टी। ठीक है, उन्होंने अपने फस्ट सम क्या वट वाज द डिफरेंस इन द नंबर क्यू नंबर आप वेखना है। टाइप्स प्रोड्यूस 2000 एंड दैट प्रोड्यूस 2001। 2001 का जिहड़ा टोटल है वो अपने को दिता है, इत्थे मिस हो गया। ठीक है, इन्हूं लिख लेना अपने को कितना दिता है 4,40,000। जिवें इहदा टोटल दिता ना कोस्ट द प्रोडक्शन का उवें इहदे च दिता है। तो उन्होंने आपां कहा कि पहले आप टोटल नंबर ऑफ क्यू टाइप्स कार फाइंड कर लांगे इन 2001 च। ठीक है, फिर आप टोटल नंबर ऑफ क्यू टाइप्स 2000 च फाइंड कर लांगे। इत्थे आपां नूं परसेंटेज दित्ती है। ठीक है, परसेंटेज दित्ती है तो आप उहदे चों परसेंटेज ही डिनोट करना है। तो किन्ने परसेंट बनेगा जे आप 2000 च देखिए तो अपने को पी कितना बनता पिया, सॉरी क्यू कितना बनता पिया, क्यू अपने को ये वाला। ठीक है, तो ये अपने को की बनता 10%। तो इत्थों आप क्यू फाइंड करांगे। ठीक है, क्यू इत्थे अपने को की बनता
इतों देखिए 30 to 45 तक जाता पे ना, 45 माइनस 30, ठीक है। तो कितना आ गया 15%। 15% किंदा है ऑफ टोटल कितना अपने को दिता है 3,50,000 का, ठीक है। इनका 15% किमें करोगे 15/100 मल्टीप्लाई 3,50,000 आ 2 0 नाल 2 0 कैंसल हो जाएगी, बाकी नूं आपां मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जिहड़ा मल्टीप्लाई करन ते अपने कोल क्या आएगा 52,500। नैक्सट आपां इस 2001 च देखना, ठीक है। 2001 च जे आपां देखिए तो आपां वेखना क्यू दी लाइन अपने कोल इत्थे है तो इत्थे है, ठीक है। मतलब 60 माइनस कितना आंदा पिया 40, तो 20% हो गया। 20% हुण टोटल कितना सी अपने कोल 4,40,000, इनका आपां 20% कर देना है। तो परसेंटेज सानूं करनी आ गई इस ढंग नाल परसेंटेज करनी है। तो परसेंटेज आपां करांगे तो अपने कोल की बन जाएगा 88,000। उन्होंने अपने क्या ना दोनों का डिफरेंस 88,000 चो आप 52,500 माइनस कर देंगे तो अपने को जो राइट ऑप्शन है वो बन जाएगी 35,500। तुसीं नैक्सट सॉल्व करके देख सकते हो 88,000 चो 52,500 माइनस कर देंगे। नैक्सट है सैकेंड सम, टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ मॉडल P, Q एंड T मैनुफैक्चर इन 2000। 2000 च आप देखनी है कितनी कार मैनुफैक्चर हुई 2000 विच P, Q एंड T दियाँ, ठीक है। तो पहले आप वेखांगे P, Q एंड T की परसेंटेज कितनी है। जे आप P, Q एंड P दी देखिए तो ये अपने को डायरैक्ट ही कितने आती पई है 30, ठीक है। तो नैक्सट अपने को है QT, ठीक है। तो Q दी आप इत्थे बनाई सी अपने को की बनती पई सी 15, ठीक है। आ Q है तो Q दी की बनती पई है 15। इवें जे आप अपने को P है, Q है, R है, S है एंड T है। तो सैकेंड आप वेखनी है T दी, तो T दी अपने को की बनती पई है 15। मतलब टोटल की होगी 30 + 15 + 15% ऑफ किहड़े ईयर 2000 की गल की है। टोटल आप ए लवांगे, इनका इन्ना परसेंट लवांगे क्योंकि परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज तो आप वैल्यू कन्वर्ट करना है, ठीक है। यही दिता है ना टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ P, Q एंड T मैनुफैक्चर इन 2000। तो इन्हों सारे ना टोटल कर देंगे 30 + 15 + करोगे तो 60% आ जाएगा। कितना 16% करना आप 3,50,000 का। आ 2 0 ना 2 0 कैंसल हो जाएगी, बाकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या आएगा सी ऑप्शन राइट आ जाएगा 21। नैक्सट है इफ द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ P टाइप्स कार इन 2001 वाज सेम दैट 2000। उन्हें क्या कि जी P टाइप कार है इनकी जी परसेंटेज है 2001 च वो सेम हो जाती है 2000 नाल। द नंबर ऑफ आपां पूछा नंबर ऑफ P टाइप्स कार्स प्रोड्यूस इन 2001 वुड हैव बीन। तो आप फाइंड करनी है कि P टाइप कार जी है वो कितनी प्रोड्यूस होंगी है 2001 दे विच। तो पहले अपन परसेंटेज दी है ना P टाइप कार इन 2001 वाज सेम दी है 2000 के सेम नाल दी, ठीक है। तो इनका मतलब जे आप देखिए तो अपने कोल आ जाएगी तो P दी आप देखांगे 2000 चो की है 30% है, ठीक है। तो ये सेम ही इन्ना क्या है कि इन्नी इहदे विच है 2001 च। इन्ना मतलब आप की ले लेंगे 30% ऑफ इहदे विच अपने कोल टोटल जिहड़ा सी वो की सी 4,40,000 का, ठीक है। तो इनका 30% कर दोगे तो अपने को क्या आएगा 132,000। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगी। आप डायरैक्ट यही लैके चल जाएंगे इन्हें 30% दोनों इक्वली क्या ना, तो डायरैक्ट आप इनका 30% लैके चल सकते हैं। 2001 च भी उन्होंने कहा भी सेम परसेंटेज है तो आप जिन्नी अपने को 2000 च है उन्नी आप 2001 च लैके चलांगे। उन्होंने कहा सी अपन P टाइप कार फाइंड करनी है तो अपने को इन्नी आंसर आ जाएगी। नैक्सट है फोर्थ, इफ 85% ऑफ एस टाइप कार आर प्रोड्यूस इन ईच ईयर। कहते 85% जी है प्रोड्यूस होंगी है ईच ईयर च इन ईच ईयर वार सोल्ड जी सोल्ड हो जाती है। हाउ मैनी एस टाइप्स मेन अनसोल्ड, तो किन्नी जी अनसोल्ड रह जाती है ना। मतलब 85 चों 85% जो सोल्ड होगी तो किन्नी रह गई 15%। तो 15% ही ऑफ इंदी रह गई तो 15% ऑफ अपने को इंदी रह गई। इंदे अपन ईयर नहीं ना दसिया तो दोनों ईयर्स की आप लवांगे। उन्होंने कहा ईच ईयर्स तो आप दोनों का टोटल करांगे ईच ईयर आर सोल्ड, ठीक है। तो हाउ मैनी ऐसा कार मीन अनसोल्ड कितनियाँ अनसोल्ड रह गई अपन पता लग गया 85% दोनों टाइप्स दी कार्स जो विक गई। तो अपने को कितनियाँ रह गई 15% ही इंदियाँ रह गई तो 15% ही दूसरे दिन रह गई। तो इन्हें मतलब टोटल जो 15% आप करके इनका भी करांगे इनका भी तो इकट्ठा आप 15% इन्होंने दोनों के सम का कर सकते हैं।
इन्हां दोनों का सम कर दो तो उनका की कर देना है अपने को आ जाएगा 79 तो इन 15% कर देना अपॉन 100 ला दोगे इनू कैंसिल कर दो तो बाकी जो इनू मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को आएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा। नैक्सट अपने को लाइन ग्राफ थोड़ा ईजी होंगे। रेशो ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट बाय द कंपनीज इहदे अपने को रेशो दी हुई है। रेशो कि दी है इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट फस्ट पार्ट है एंड एक्सपोर्ट नीचे जिवें ए अपॉन बी की रेशो दी हुई है अपने को 0.65 इहदे ए अपने को की है इंपोर्ट एंड बी की अपने को एक्सपोर्ट दिता। ओवर द ईयर हरेक ईयर जो आती है वैल्यू आपको दी हुई है। ये मान के चलना देखो ये रेशो दी हुई है आप इन्हू डायरैक्ट यूज़ नहीं कर सकते एज अ रेशो यूज़ करांगे। इफ द एक्सपोर्ट इन 1998 वाज 250 करोड़ उन्हें क्या कि जो इंपोर्ट है वो अपने को किया 250 तो अपने को 250 अपॉन की अपने को एक्सपोर्ट तो अपन क्या एंड द टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर 1998 एंड 1990 टुगैदर वाज 500 करोड़ द इंपोर्ट इन 1999 में आप इंपोर्ट फाइंड करना है। ठीक है तो अपने वेखो अपने को पहले 1998 की गल की है ना तो 1998 जी अपने को रेशो की है वो दी है 1.25 तो इट मीनस जो 250 है अपने को एक्सपोर्ट नहीं दिता। ठीक है एक्सपोर्ट में तुम ई लैके चल पो तो इज इक्वल टू कि दिता है 250 दे सॉरी इनकी जी रेशो है वो अपनी दी 125 इतों तुम फाइंड कर सकते हो इधर आन के डिवाइड हो जाएगा तो अपने को आ जाएगा 200 ये अपने को आ गया जोड़ा एक्सपोर्ट होंदा पिया 1998 विच। फिर नैक्सट उन्हें अपन क्या है कि दोनों का सम 1998 के एक्सपोर्ट का तो दोनों का की है 500 एक का अपने को 200 आ गया तो दूसरा की है सम 500 है तो इन्हें 200 माइनस कर दोगे तो 1999 जो अपने को एक्सपोर्ट होएगा वो अपने को क्या आ जाएगा 300। ठीक है नैक्सट जी आप फाइंड करनी है दैन द इंपोर्ट इन 1999 विच आप इंपोर्ट पता करना है तो आप इंपोर्ट पता करना आई लिख लो अपॉन एक्सपोर्ट जो अपने को की है 300 99 इन्हों की रेशो जी है वो अपने को दी है 1.4 के इक्वल। ठीक है इन्होंने दोनों की रेशो लैके 1.4 के इक्वल करती ये तो तुम आई फाइंड कर सकते हो इधर जाके 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो अपने को इंपोर्ट की आ जाएगी। ठीक है तो 420 जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा चेक कर सकते हो सॉल्व करके। सैकेंड सम है अपने को द इंपोर्ट वर मिनीमम प्रपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट द कंपनी इन द ईयर किहड़े ईयर जो वो मिनीमम होएगा जी इन्होंने रेशो दी है वो अपने को है मिनीमम होएगी तो किहड़े ईयर च होएगी मिनीमम वो आप फाइंड करनी है। देखो जिथे अपने को जी रेशो है वो अपने को लीस्ट आ जाती है जिथे रेशो की वैल्यू जी लीस्ट आ जाती है उत्थे जी इंपोर्ट अपने को मिनीमम होएगी। ठीक है जे रेशो वेखो इतने 0.65 85 0.35 इतने तो 1 तो अबव ही है सारिया इनका मतलब 1997 जोड़ा सी ऑप्शन अपने को राइट आ जाएगा। डायरैक्ट आप देख सकते सॉल्व करने की जरूरत। थर्ड है वट वाज द परसेंटेज इनक्रीज इन द इंपोर्ट फ्रॉम 1997 टू 1998 तो किन्ने परसेंट जो इनक्रीज होंदा पिया इंपोर्ट 1997 तो लैके 1998 तक तो ये आप फाइंड करना है कि कितनी वैल्यू जी है वो इनक्रीज होंदी पई है। देखो ये आप जे 1998 का तो जोड़ा अपने को इंपोर्ट है वो आप फाइंड कर सकते क्योंकि ये फस्ट च आप फाइंड किया होया। ठीक है तो उन्हें आप लै सकते हैं बट जोड़ा आप देखिए 1997 है उन्हें सिर्फ अपने को रेशो है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बारे अपन कोई डाटा नहीं दिता। इट मीनस इनकी ऑप्शन क्या आ जाएगी डी डाटा इन इक्वेट। फोर्थ सम है इफ द इंपोर्ट ऑफ द कंपनी 1996 वाज 272 करोड़ है एक्सपोर्ट कंपनी का 1996 आप फाइंड करना है ये तो डायरैक्ट है। देखो 1996 रेशो दी है ना तो कि दी है इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट तो ये अपन इंपोर्ट दिता है 270 तो आप फाइंड करना एक्सपोर्ट ही लै लो तो रेशो अपने को है 0.85 इधर आन के डिवाइड हो जाएगा तो ये उधर चला जाएगा तो वो अपने को इंपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी कि आएगा 272/0.85 इज इक्वल टू एक्सपोर्ट। ठीक है इनू इनके डिवाइड कर दोगे तो जो राइट ऑप्शन बनेगी वो अपने को 320 बन जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगी। सैकेंड टाइप आ जाती है जिन्हें काफ़ी लाइन्स दित्तियां होंदियां एक तो पहला आप सिंगल लाइन वाली की है इहदे अपन बहुत सारिया लाइन्स दित्तियां भी आ सकती जिवें एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज ओवर द ईयर दिता है कंपनी एक्स का दिता है कंपनी जेड का दिता जो रेड कलर है जो ग्रीन है कंपनी वाई का है तो जो ब्लू है कंपनी एक्स का दिता है। कलर देख के आप करांगे फॉर विच और फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज टुगैदर आर इक्वल। ठीक है उन्हें क्या कि किहड़े ईयर च जोड़ा है पेयर ऑफ ईयर द टोटल एक्सपोर्ट है वो इक्वल होंदा है तो ईयर जी अपन दिती है 1995
ठीक है। 1995 ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਹੈ, ਬਲੂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 40 प्लस 60 प्लस 120, ठीक है। इनू ऐड करोगे तो अपने को की आ गया 220। फिर 1998 देखना, 1998 अपने को आ दित्तियां तीनों, इन्हों ऐड कर लो तो इन्हों ऐड करोगे इधरों आप देख सकते कितना सम है। पहला 100 है, फिर 80 का दिता है, फिर अपने को की दिता है 50 का, ठीक है। तो अपने को की आ गया 50 प्लस 100 प्लस 80, तो ये अपने को आ गया 230। ये दोनों इक्वल नहीं ना आए, ये 220 आ गया 230 आ गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गई। उन्होंने कहा भी वो आप फाइंड करने हैं, पेयर फाइंड करना जिन्हें दोनों का एक्सपोर्ट इक्वल आए। फिर आप 1996 एंड 1998 फाइंड करांगे, उहदे भी अपने को टोटल 1996 का भी अपने को 220 बनता पाया एंड 1998 का टोटल भी 230 बनता, तुसीं इत्थों करके देख सकते हो ग्राफ चो। फिर अपने को सी ऑप्शन आती है, सी ऑप्शन च जिहड़ा 1997 का आप करांगे तो 1998 का करांगे, तो ये दोनों की आ जाएंगे, ये भी अपने को नॉट इक्वल आउणगे। तो डी ऑप्शन च आप चैक कर सकते 1995 एंड 1996, ठीक है। जो तुसीं इत्थे 95 का फाइंड कर लिया, दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 95 का आप फाइंड किया, अपने को आउंदा पिया 220, वही आप यूज़ कर सकते हैं। 96 का आप बी च फाइंड करांगे, ठीक है, वो आप इहदे च यूज़ कर सकते, तो इत्थों पता लग जाएगा आपको डी च ऑप्शन राइट आएगा। नेक्स्ट है सेकंड, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी वाई इज़ अप्रोक्सीमेट वट परसेंटेज ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी जेड। उन्होंने कहा जी एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट है गिवन पीरियड वाई का, वो किन्ने परसेंट है एवरेज जोड़ा जेड का, ठीक है। मतलब आपको एवरेज फाइंड करनी पैनी है वाई की एंड एवरेज फाइंड करनी पैनी है जेड की। तो ईयर अपने को दिता है, इन्हें क्या कि ड्यूरिंग द गिवन पीरियड जिन्ने भी पीरियड्स दिते हैं उन्होंने टोटल आप फाइंड करना, ठीक है। तो वाई जी लाइन है वो अपने को दी हुई है ग्रीन कलर की, तो ये अपने को आ जाएगा 80 प्लस 40, आ 40 शो होंदा पे इत्थे 40 प्लस इत्थे अपने को शो होंदा पिया है 60, ठीक है। इवें लाइन्स जिन्ने भी पॉइंट्स है जिथे इन्हों की वैल्यू आती पई उन्होंने आप ऐड कर लाँगे, तो वैल्यू अपने को आएगी 80 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 तो प्लस 140, ठीक है। इन्हें टोटल करोगे 560 आ जाएगा। अपॉन आप एवरेज करनी है, अपॉन टोटल किन्ने दिते है 7 दिते हैं, तो अपने को आ गया 80। पहला उन्होंने कहा ना इतने आपको एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट, तो एवरेज फाइंड करनी है। फिर सेम ही उन्होंने आपको किन्ने नाल कहा जेड नाल, तो जेड का आप फाइंड करांगे। जेड लाइन अपने को है इस कलर च है, इन्हों ऐड कर लोगे, पहला अपने को 60 है, फिर अपने को है 90 है, ठीक है। तो इन्हों ऐड कर लो 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 करोगे तो 600 अपॉन क्या आ जाएगा 7, ठीक है। फिर उन्होंने आपको कहा कि परसेंटेज फाइंड करो, तो परसेंटेज फाइंड करने की है जिन्नी परसेंटेज आप फाइंड करनी है उन्होंने उपर रख लाँगे, नीचे जिन्हें परसेंटेज फाइंड करनी है अपॉन की कर देंगे मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। इनू मल्टीप्लाई कर लो 56 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 100, 2 0 कैंसल हो जाएंगे। 560 नू 6 नाल मल्टीप्लाई कर लो तो 93.33 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। जे इत्थे तुसी एवरेज नहीं फाइंड करनी तो डायरैक्ट भी आप जो टोटल है जो टोटल है इनू उपर रख के इहदा टोटल नीचे रख के भी कर सकते, वो भी अपने को आंसर सेम आएगा, ठीक है। एवरेज दोनों की कहना, तो एवरेज नीचे अपने को वेखो टोटल अपने को दोनों लिए 7 होएगा, और 7 अपने को डायरैक्ट जो कैंसल हो जाएगा। थर्ड सम है, इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी एक्स एंड वाई मिनीमम। डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट कंपनी एक्स एंड वाई मिनीमम किहड़े ईयर विच जिहड़ा वो मिनीमम हुंदा है, आपां वो फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इनू ग्राफ तो भी जिहड़ा है ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिहड़ा एक्सपोर्ट एक्स का ते वाई का 1996 विच इहदी लीस्ट वैल्यू आएगी सी है। इत्थों देखो जिवें हुण आपां एक्स का देखना है एंड वाई का देखना है। एक्स अपने कोल है ब्लू लाइन, ठीक है, तो वाई अपने कोल है एक्स एंड वाई, ठीक है। वाई अपने कोल की है ग्रीन लाइन, ब्लू एंड ग्रीन का डिफरेंस देखना है। अज इत्थे कट करते देखो इत्थे कोई ईयर नहीं हैगा, इनू आपां नहीं लैके चलना, ये नहीं है 0 लैके चलांगे क्योंकि इत्थे कोई ईयर नहीं शो रहा। तो जो आप डिफरेंस है वो फाइंड कर लाँगे। इत्थे देखो जी इत्थे आप दोनों का डिफरेंस देखिए तो इत्थे अपने कोल की बनता पिया है
इधर लाइन है, एक इधर लाइन है, ठीक है। 70 माइनस 60 तो 10, ठीक है। लाइना तो अपन शो होंगे भी जिथे बिल्कुल नज़दीक है लाइन, तो ये अपने को की बनता है 10। इट मीनस 1996 में अपने को जो डिफरेंस है वो मिनीमम आएगा। फोर्थ है वट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द 3 कंपनीज 1993। भी 1993 ईयर जिन्ना भी एवरेज एक्सपोर्ट है, एवरेज एक्सपोर्ट मतलब इन्होंने तिनों ऐड करके अपॉन किया 3 कर देना। तो एवरेज एक्सपोर्ट इन 1998 उन्होंने दोनों का डिफरेंस फाइंड करना। 1998 में जिन्ना इन्हों की एवरेज है उन्होंने सॉल्व करके उनका आप डिफरेंस करना है। तो इतने पहला करा, इतने अपने को 30 है, 60 है, 80 है, तो की आ जाएगा अपने को 1/3 30 1/3 तां किया क्योंकि अपने को 3 टर्म्स दित्तियां। तो एवरेज फाइंड करने नीचे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 170 अपॉन किया गया 3। वो भी 1998 में देखोगे एक अपने को फर्स्ट आएगा 50, फिर आएगा 100, तो फिर आएगा 80। इनू सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 230 अपॉन 3। इन्होंने दोनों का आप डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या आ गया 230 अपॉन 3 माइनस 170 अपॉन 3। डिफरेंस फाइंड करोगे तो 60 अपॉन 3 आ जाएगा, कैंसल करोगे तो 20। जी सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आ जाएगी, ठीक है। ये असी डाटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड जो भी सम, तो मेन इहदे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होंगी है डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने लिए। जो नहीं भी प्रैक्टिस तो तुहानूं सारे टाइप्स मैं ये सॉल्व करवा देती है, कोई भी टाइप इहदे नहीं रहेगी। बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, वध तो वध यही ग्राफ आपनूं आ सकते हैं, ठीक है। जो वीडियो पसंद आए लाइक करो, वध तो वध शेयर करो, ठीक है। तो सबसक्राइब करो जो चैनल में सबसक्राइब नहीं किया।